Welcome to Talk with Healthcare Heroes. Today I have Dr. Rashi Agarwal with me, who is working as a senior clinical oncologist in Max Hospital. And she has done her MBBS, MD from very prestigious colleges and has enormous awards in and has taken fellowship from Tata Memorial Hospital, and she has UICC fellowship from Switzerland and LMMC from California, USA. So, and she's an advanced trained in radiation therapy, and she has also keen interest in breast and gynecology cancer management. So I am so glad to invite you, Dr. Rashi, to this talk show. Before we start our talk, so the topic is awareness on breast cancer. So let's just have a little talk and let's just know you, and our viewers would love to know you. So ma'am, my first question to you is, why did you choose to be a doctor? Actually, you see what happened. My father, he was the inspiration. He is the inspiration actually. मैं जो हूँ एक छोटे से विलेज को बिलोंग करती हूँ, तो पापा का कहना था कि जो मेरी बड़ी बेटी, उसको मतलब मेरे परिवार का नाम रोशन जरूर करना है। और जब उस समय की बात है, ये इट इज अबाउट 40 इयर्स बैक, तो उस समय डॉक्टर इंजीनियरिंग होता था। तो यही है कि लड़के इंजीनियर हुआ करते थे, लड़कियां डॉक्टर्स। तो उनका ही था कि मेरी बेटी को मुझे डॉक्टर बनाना है, और मेरा ये सोचना था कि जो पापा ने कहा है, उनके सपनों को अगर हम पूरा कर पाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। That's what me inspired to be a doctor. Wow, that's great. Ma'am, so you are an oncologist, clinical oncologist. Ma'am, why did you choose to be an oncologist? Actually, this was not planned. When I entered in medical college, then I chose, I should not say chose, मैंने chose नहीं किया था, I got this branch. लेकिन जब मैं इस ब्रांच में गई और जब मैंने अपने सीनियर जो मेरी टीचर हैं उनको देखा कि पेशेंट जो ठीक हो गए हैं, वो फॉलोअप में 15 इयर्स के बाद जो आ रहे हैं, तो दे वर सो मच ऑब्लाइज्ड कि उनको इतनी बड़ी बीमारी थी, इतना अब तो कैंसर का टाइप फिर भी अवेयरनेस बढ़ रही है, उस समय तो अवेयरनेस बहुत ही कम थी। तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि हाँ, क्या मरीज ठीक हो सकते हैं। तो इतना मुझे अच्छा लगा कि इतनी अच्छी ब्रांच है कि लोग ठीक हो जाते हैं, फिर वो आपको इतना ज्यादा इतनी दुआएं देते हैं वो आपको, और आपको खुद भी कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि डॉक्टर का क्या मतलब है हमारे लिए मतलब ये है कि वो ठीक कर दे। तो ऐसी बीमारी जिसको हमें तो यही पता है कि ठीक नहीं हो सकता, उसको हम ठीक कर पाएंगे। तो आई थॉट कि यस, मुझे इस ब्रांच में चलो सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन रहना भी चाहिए। Then I remained this branch. That's how. Okay, ma'am, what keeps you motivating? As in, you have a family back at home and you have pressure from the family, and also you have to come every day to hospital. So what keeps you motivating? Yeah, it is very difficult to come, every day. And I think being doctor, we all have, not me, all have a big responsibility. We cannot leave when I want. I cannot leave. I cannot take leave. Yeah. My patients are waiting for me. But वही चीज मैंने अभी पहले भी आपसे कही थी कि जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो वो जो उनका स्माइल होती है, या फिर जो हमें ये लगता है कि हमें उनको ठीक करना है ना। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें उनका सेटिस्फेक्शन, जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन होता है हमारे ट्रीटमेंट से। और मुझे लगता है कि सब कुछ मतलब हमारे पेशेंट्स पे ही डिपेंड करता है, उन्हीं का सब कुछ, उनका ही सब चीजें जो है वो ठीक से चलती रहे। That's keep me motivating। नहीं, मुझे आज जाना है, आज ये काम करना है, आज ये जरूरी है जाना, ये सब चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं। That's great, ma'am. So, ma'am, what do you think as maybe आपके junior doctors or the upcoming oncologists? What is the trait an oncology oncology doctor should have? What do you think is the best trait oncology doctor should have? Actually,
knowledge is very important, I must say, but the thing that I think one must have is empathy. Hmm. That is very important. Uh, you should always think for the patients if you would have been there. Hmm. कि अगर मेरे संग ऐसा होता तो वो वाला जो कंपोनेंट अगर हम अपने ट्रीटमेंट में ऐड करते हैं Hmm. तो दैट इज एक्सीलेंट. तो नॉलेज इज मस्ट, नॉलेज तो बहुत जरूरी है, Exactly. लेकिन एम्पैथी मैं अपने मतलब जितने डॉक्टर्स को यही एडवाइस करूंगी, कलीग्स को, या फिर ये कि यू शुड ऐड एम्पैथी इन योर ट्रीटमेंट. In your treatment. दैट विल बी द बेस्ट. Okay. Okay, ma'am. So glad to know you. So let's just move on to our talk, which is awareness on breast cancer. So, ma'am, like breast cancer is increasing, and we see it is one of the when we see the mortality rate, it is like 2.1 million women has a mortality while having a breast cancer, and I think we should talk about it. Awareness is very much needed when it comes to Yeah. breast cancer. So, ma'am, what exactly is breast cancer? Cancer are of multiple types. One of them is breast cancer. Cancer that is happening in breast is breast cancer. And what happens in cancer? Normally our cells, any cell, die at one particular time. Because of some problem, cell becomes abnormal, and that's why it stops dying and accumulates. Abnormal cell accumulates, and then we call it a tumor. And if it is spreading to other parts of body, it has potential to spread to other parts of the body, then we call it malignant tumor. Okay. And when this malignant tumor happens in breast, that is breast cancer. And ब्रेस्ट कैंसर अगर हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं तो उसमें क्या महसूस होता है आपको? एक महसूस एक गांठ ही होती है, ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है. एक लंप, इन इंग्लिश वी कॉल इट लंप, एक गांठ वो महसूस होती है. और गांठ ब्रेस्ट में हो सकती है, ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट में, या फिर एक्जिला में भी हो सकती है. और इसके प्रेजेंटेशंस में क्या होता है, निपल जो होता है वो अंदर की तरफ जाने लगे, या ब्रेस्ट की स्किन में कुछ थिकनिंग होने लगे. एबनॉर्मल थिकनिंग जो पहले नहीं थी वो अब हो रही है. तो एबनॉर्मल थिकनिंग, लंप जो पहले नहीं था वो रिसेंटली कोई लंप, या 5-6 महीने से धीरे धीरे कोई लंप डेवलप हो गया है. और निपल से डिस्चार्ज एबनॉर्मल तरीके से कुछ, या ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉन्टेनियस अपने आप ही डिस्चार्ज कुछ हो रहा है, या फिर निपल अंदर की तरफ जा रहा है, या ब्रेस्ट जो है उसमें कुछ डिम्पलिंग सा हो रहा है. So anything that was not earlier, now it is happening, is maybe the symptom of any problem that may be breast cancer. Then you have to consult your doctor. So, ma'am, जब भी ये symptoms होता है, when you see the symptoms, you have to immediately come to a doctor. Is there some age to it? Breast cancer usually जो most commonly age जो होती है after 40 कही जाती है, but it is not unusual to see breast cancer at the age of 30, 25. It is not unusual. So we should be aware about our breast from the age of 18 years. So ये normal age तो है, after 40 it is more common, but it is not I should not say it is not rare to have a breast cancer patient at the age of 18 also. What do you think are the causes of breast cancer? क्या वजह हो सकता है breast cancer का? Actually breast cancer हार्मोन से रिलेटेड है. ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर जितना ज्यादा होता है उतना उसके होने की संभावना ज्यादा है, बट देयर इज नो डेफिनेट कॉज. मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कहे जाते हैं कि हाँ इसकी वजह से हो सकता है. उसमें से एक है एज. जितना एज बढ़ती जाती है उतना ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और दूसरा है फीमेल जेंडर. मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को ये बहुत कॉमन है. और वजह है जैसे कि अर्ली मिनार्की, अगर मेंसेस जल्दी शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर ज्यादा रहेगा. और मेनोपॉज लेट हुआ तो एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्सपोजर का टाइम जो है वो बढ़ जाता है. और जितना
बच्चे कम होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे होते हैं उस टाइम पे मेंसेस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर बंद हो जाता है, तो बच्चे कम होना या ना होना इज आल्सो इज अ रिस्क फैक्टर। और ब्रेस्ट फीडिंग का ना कराना भी रिस्क फैक्टर कहा गया। और इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं कि कुछ जीन्स होते हैं जैसे BRCA1 BRCA2, उनमें चेंजेस की वजह से भी हो जाता है। और फैमिली रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, फैमिली में रन करता है तो उसकी वजह से भी है। और इसके अलावा जो ये ओबेसिटी ओबीज जो लोग हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का भी ज्यादा देखा गया है, बिकॉज जो ओबेसिटी जो एडिपोज टिश्यू है वो एस्ट्रोजन हार्मोन में चेंज हो जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी वजह से ही ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओबेसिटी इज आल्सो ए कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मैम कुछ स्टेजेस होते हैं क्या ब्रेस्ट कैंसर में? स्टेजेस भी है, वो हर कैंसर के जैसे स्टेजेस होते हैं वैसे इस ब्रेस्ट कैंसर के भी 4 स्टेज होते हैं। इसमें स्टेज 0 भी होती है कि जब कैंसर नहीं फैला नहीं होता है, इन सिटू मतलब कोशिकाओं के अंदर ही होता है तो उसे इन सिटू बोलते हैं। स्टेज 1 और 2 में ब्रेस्ट तक लिमिटेड होता है, 3 में नोड तक जाता है। और स्टेज 4 वो कैंसर होता है जब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकल करके बॉडी के और पार्ट्स में फैल जाता है, तब इसको हम लोग स्टेज 4 का कैंसर बोलते हैं। So, ma'am, there is a myth that, oh, I have cancer, I will die. Is it curable? Breast cancer, is it curable? ऐसे दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ना कैंसर के नाम से हर किसी को लगता है कि डेथ मेरी बिल्कुल सामने है। ब्रेस्ट कैंसर के संग ये है कि इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो जितना जल्दी डायग्नोज होता है स्क्रीनिंग से हम लोग स्टेज 0 का कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं। ये स्टेज 1 में भी कैंसर डायग्नोज हो जाते हैं। ये खुद भी अगर सेल्फ अवेयर रहे तो बहुत आगे स्टेज के ट्यूमर डायग्नोज हो जाते हैं। देयर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ क्योर if the tumor biology is good and we diagnose at an early stage, there are good chance of cure. ऐसा नहीं है कि हर मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया तो डेथ ही निश्चित है। कितने सारे पेशेंट फॉलोअप के लिए आते हैं, तो स्टेज 1, 2 और 3 में भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। और आप इतनी सारी ड्रग्स भी आ गई है कि अगर वो ज्यादा स्टेज में मतलब डायग्नोज होता है तो भी उन ड्रग्स की हेल्प से हम एक्चुअली लाइफ को क्वालिटी ऑफ लाइफ को वी कैन प्रोलॉन्ग दैट लाइफ आल्सो। सो वी मस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट। So, ma'am, इसका कुछ अगर like you said, the symptoms are there and we have to meet the doctor. So, what are the diagnostic or what are the screening procedures that we do? A patient has to undergo. Yes. I want to through this channel we can focus, we can aware our viewers about self breast examination, how to screen the patients. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें ब्रेस्ट अवेयरनेस हो। ब्रेस्ट अवेयरनेस स्टार्ट एट द एज ऑफ 20 years, मतलब ब्रेस्ट को खुद ही एग्जामिन करना होता है। सिंपल सा प्रोसेस है। आफ्टर मेंसेस, आफ्टर 1 week ऑफ मेंसेस, with the help of 3 fingers, this 1 2 3 flat of fingers, we have to palpate our breast, मतलब हमें उसको टच करके देखना होता है। तो फर्स्ट बार आप जब टच करेंगे 1-2 बार में तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्रेस्ट में उसका कंट्रोल वो कैसा है, उसमें नोडुलरिटी है तो कितनी है। और पूरा हमें कॉलर बोन से लेकर के नीचे तक पूरा एग्जामिन करना होता है। तो everyone should know about it, and if there are male viewers, so they should tell their wife, their mothers, their friends कि because this cancer is very common. इंडिया में इतना कॉमन है कि हर 28 लेडीज में चांसेस है किसी एक को हो, ये इतना कॉमन हो रहा है। और रूरल में कम, रूरल एरिया में कम है, लेकिन गाजियाबाद, दिल्ली, दिस इज मेट्रो सिटी, तो यहाँ पर होने के बहुत चांसेस हैं। तो जितना लोगों को पता होगा उतना अच्छा है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो करते हैं वो मेंसेस खत्म होने के बाद हर महीने में एक बार, सिर्फ एक बार करना है। और इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स। एक बार करना आ जाता है, समझ में आ जाता है तो करना होता है। देखना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि पहले हमारे ब्रेस्ट कैसे थे, व्हाट इज नॉर्मल। जो पहले था वो नॉर्मल है, अगर उसमें से कुछ अलग हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है। फर्स्ट यू हैव टू लुक एट मिरर। मिरर में देखना है कि ब्रेस्ट की शेप कैसी है, उसकी पोजीशन क्या है, निपल की कितना ऊपर नीचे वो पहले से ही है।
फिर हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि जो चीज नहीं थी वो अब हो रही है, कोई ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, निपल अंदर जा रहा है, निपल से अपने आप को डिस्चार्ज हो रहा है, फिर उसे टच करके देखना होता है कि कोई स्किन इरेगुलरिटी या फिर कोई लम्प हमें दिख तो या फील तो नहीं हो रहा है। और आफ्टर 40 इयर्स एक टेस्ट होता है मैमोग्राफी, वो शुरू हो जाती है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाने से डरना नहीं चाहिए। लोग इस डर से नहीं जाते हैं ना कि अगर मैं जाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाएगी। तो पता डॉक्टर के पास जाने से तो डायग्नोज ही होगी ना, ये हो तो नहीं जाएगी ना। डॉक्टर इज नॉट द कॉज ऑफ एनी डिजीज, इसलिए डरना नहीं चाहिए। तो मैम एक कंसेप्शन है कि इज मैमोग्राफी हार्मफुल? या ये इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मैमोग्राफी, हाँ पूछते हैं लोग कि भाई मैमोग्राफी के बारे में गूगल से पढ़ लिया कि यस इट गिव्स सम एक्सरेज और वो रेडिएशन के एक्सपोजर से ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। तो ये जो मैमोग्राफी है वो इस तरह का स्क्रीनिंग टूल बनाया गया है कि इससे जो एक्सरेज निकलती हैं वो उतनी बहुत ही कम होती है, वो उतनी होती है जितना कि अगर हम लोग यूजुअली जो सड़क पे घूमते हैं तो 3 महीने में जो सन का एक्सपोजर होता है ना, उतना मैमोग्राफी से हमें एक्सपोजर होता है रेडिएशन का। So it is harmless and we can diagnose if the disease is there, then we can diagnose the breast cancer 1 year before the symptom. इसीलिए इसको स्क्रीनिंग टूल बोला गया है। 40 के बाद करानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे करानी चाहिए, अपने आप नहीं कराना चाहिए, बिकॉज इसका इंटरप्रिटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि खुद करा के बैठ जाओ और उसके बाद जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो समझ में ना आए, क्योंकि उसमें आप देखिए किसी भी जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें लिखा होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, मतलब जो जिन्होंने देखा है डॉक्टर ने वो जरूर इसको कोरिलेट करें। तो आप तो इसको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके कराइए भी और उनकी सलाह पर ही रिपीट कराइए, अपने आप नहीं कराना होता है। So one question just popped up. Usually, it breast cancer जब बोलते हैं तो everybody thinks it's only in females. So it could be also in male. या मैंने जैसे बताया था कॉजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें बी फीमेल जेंडर एक कॉज है ना, लेकिन फीमेल जेंडर में ज्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं हो सकता है। अगर फीमेल्स में 1:28 का रेशियो है तो मेल्स में 1:100 का रेशियो है, तो होता तो है। और इन माय ओपीडी आई थिंक आई सी 1 केस इन अ मंथ। Okay. So it is also अगर कुछ ऐसा symptoms मेल में भी आता है तो it is important that you also go and बिल्कुल बिल्कुल, उनको अगर कुछ लंप सा लग रहा है ना, उनको पेन हो रहा है, then they also not miss कि नहीं मैं मुझे तो हो ही नहीं सकता। exactly. ऐसा नहीं है। और मेल वाले ब्रेस्ट कैंसर तो ये आप समझो कि एडवांस स्टेज में ही डायग्नोज होते हैं, क्योंकि यही लगता है ना उनको मतलब मुझे तो हो ही नहीं सकता, तो दे डोंट गो। तो उसकी वजह से ये अक्सर एडवांस स्टेज में ही डायग्नोज हो पाता है। So ma'am, what is the management for breast cancer that you do? ब्रेस्ट कैंसर के जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें तीनों ही चीजें जो किसी भी रेडिएशन किसी भी ट्रीटमेंट में होती है कैंसर के, सर्जरी है ना, और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये तीनों का रोल आता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का किस स्टेज पर है, तो उसके हिसाब से ही जो ट्रीटमेंट है वो आता है। किसी में पहले सर्जरी होगी, किसी में पहले कीमो होगी, किसी में रेडिएशन, उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि पूरा ट्रीटमेंट देने के लिए हमें कराना चाहिए। और पेशेंट की एज पे भी डिपेंड करता है, उसकी कोमोर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डियक प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से कौन सी ड्रग देनी है या कौन सी, अगर हम कोई टैबलेट भी दे रहे हैं खाने की तो उस पर भी डिपेंड करता है। आजकल बहुत सारी हार्मोन थेरेपी या टैबलेट्स भी आ गई है। और जो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमें जब भी हमें शक हो तो हमें स्पेशलिस्ट से ही कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आजकल नई नई चीजें आ गई है। तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर में जरूरी नहीं है कि हमें जब भी हमें ट्रीटमेंट हो तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़े, ठीक है। तो अभी ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी होता है, मतलब ब्रेस्ट की छोटी सी गांठ को ही निकालते हैं, उसके बाद रेडिएशन कर देते हैं, तो फिर हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लेडी टू प्रिजर्व द ब्रेस्ट। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि अब हमारी टेक्निक्स में बहुत चेंज आ गया है। तो ये नहीं है कि अगर जैसे सबको डर होता है कि अगर रेडिएशन किया जाएगा तो जल जाएंगे, तो जो किसी को 20 साल पहले हुआ था वो जरूरी नहीं वो साइड इफेक्ट अभी भी है। ओके, तो दैट शुड बी डिस्कस विद डॉक्टर। और लोगों की बात सुननी चाहिए, लेकिन मतलब डॉक्टर से जरूर कंफर्म कर लेना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। और मुझे एक चीज और कहनी है कि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो लोग डर जाते हैं कि यार ये गांठ हो गई तो मुझे कैंसर ही हो गया, तो मैं ना जाऊं, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं।
हर गांठ कैंसर नहीं होती है ना, 90% जो लम्स होते हैं दे आर नॉट कैंसरस। द टॉक दैट वी आर डूइंग इज ओनली फॉर अवेयरनेस, है ना, कि आप 60 साल की उम्र में ये ना सोचें कि दूध की गांठ हो गई है ना, 60 साल की उम्र में दूध की गांठ नहीं हो सकती, है ना। तो 60 साल की उम्र में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ये क्या चीज है, ये अपने आप ही ये 20 साल में आप सोच के बैठ जाए मुझे तो कैंसर हो गया, डिप्रेशन में चले जाए, है ना, ये बोथ आर एक्सट्रीम स्टेट्स। सो यू शुड कंसल्ट टू ए प्रॉपर पर्सन। और ये सब चीजें अवेयरनेस के लिए है ना, हमें पता होता है तो हम अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। तो आपस में बात करें, जितना हम बात करते हैं उससे हमारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर होते हैं। और I think we have covered all the topics, all the questions. We have covered all the questions, and thank you for joining in, ma'am. And I would also suggest the viewers who are watching, if you know any woman, if you know any lady, as in anybody in your family who's a woman, tell them that breast self-examination is important, and give awareness to them. When you know, you should also share that. And also to the ladies out there, speak up. कुछ भी होता है, जैसे डॉक्टर राशि ने बोला, आप बताइए, आप मिलिए डॉक्टर से। Thank you for joining. must say in this lockdown period people must have learned about the use of this Facebook, and this should go not only in metro cities, also in our rural area, because उन लोगों को बहुत कम पता होता है। तो जितना अच्छा होगा ना कि हम ये चीज जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जिनके रिलेटिव्स अगर रूरल एरियाज में हैं, है ना, जो डिस्टेंट एरियाज में हैं, वो वहां पर डिस्कस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग ना इस वाले एरिया में, जो ये गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर है, यहाँ पर लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन जहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, अगर ये वीडियो वहां तक फॉरवर्ड हो तो बहुत अच्छा रहेगा। For joining in, and those who are watching us, please subscribe to Medical Grip and like our Facebook page, Medical Grip. And yeah, like ma'am said, please keep sharing and share the awareness. Thank you everyone for joining.